کہ شہر لاہور حالات کے رحم و کرم پر شہر کے 90 واٹر فلٹریشن پلانٹس کے نمونے فیل ہو گئے. 90 میں سے ایک پلانٹ کا بھی پانی پینے کے قابل نہیں ہے. PCSIR نے بھانڈا پھوڑ دیا. میٹروپولیٹن کارپوریشن کا واٹر فلٹریشن پلانٹ واسا کے سپورٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. میٹروپولیٹن کارپوریشن کا 90 واٹر فلٹریشن پلانٹس واسا کے حوالے کرنے کا فیصلہ. عدالت عالیہ کے حکم کے مطابق میٹروپولیٹن کارپوریشن کے زیر کنٹرول تمام واٹر فلٹریشن پلانٹس کے لیبارٹری ٹیسٹ مکمل کرا لیے گئے. PCSIR لیبارٹری کی رپورٹس کے مطابق ایک بھی پلانٹ معیار پر پورا نہیں اتر سکا. حد تو یہ ہے کہ ایک فلٹریشن پلانٹ کا پانی بھی پینے کے قابل نہیں ہے، لیکن ان کو چلانے کے لیے کروڑوں کے اخراجات ہو رہے تھے. تاہم عدالت کے حکم پر آئندہ پیر سے زونل آفیسرز اور واسا کے افسران مشترکہ سروے کا آغاز کریں گے. شہر کی یونین کونسلز میں 90 واٹر فلٹریشن پلانٹ میٹروپولیٹن کارپوریشن اپنے وسائل سے چلاتی تھی. ادھر اقبال ٹاؤن خیبر بلاک کا واٹر فلٹریشن پلانٹ 1 سال 2 ماہ سے بند ہے. علاقہ مکین پانی کے حصول کے لیے دوسرے علاقوں کا رخ کرنے پر مجبور ہو گئے. سمن آباد بسامی روڈ کے مکین بھی پینے کے صاف پانی کو ترس گئے. اقبال ٹاؤن خیبر بلاک کا واٹر فلٹریشن پلانٹ 1 سال 2 ماہ سے بند پڑا ہے. اہل علاقہ صاف پانی کے حصول کے لیے دوسرے علاقوں کا رخ کرنے پر مجبور ہے، جس کی وجہ سے مشکلات درپیش ہیں. انہوں نے کہا کہ خیبر بلاک میں ہزاروں افراد مکین ہیں. مہنگائی کی چکی میں پسے بیشتر لوگ پینے کا صاف پانی خریدنے کی سکت نہیں رکھتے. اس صورتحال میں فلٹریشن پلانٹ کا بحال ہونا بے حد ضروری ہے. اہل علاقہ نے اعلیٰ حکام سے ترجیحی بنیادوں پر فلٹریشن پلانٹ کو ٹھیک کرانے کا مطالبہ کیا ہے. سمن آباد بستامی روڈ کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے. یہاں کے مکین بھی پینے کے صاف پانی کو ترس گئے ہیں. واٹر فلٹریشن پلانٹ 3 روز سے بند ہے، جس کے باعث اہل علاقہ صاف پانی دوسرے علاقوں سے بھر کر لا رہے ہیں، جس کی وجہ سے مشکلات درپیش ہیں. اہل علاقہ نے مطالبہ کیا ہے کہ فلٹریشن پلانٹ کو جلد از جلد بحال کیا جائے. صاف پانی کی فراہمی کے بعد اب کچھ صحت کی سہولیات کا ذکر کریں. آپ کو بتائیں یہ صوبائی دارالحکومت ہے یا کوئی تحصیل. سروسز ہسپتال میں 9 میں سے 7 الٹرا ساؤنڈ مشینیں بند پڑی ہیں. میو ہسپتال میں بھی متعدد سٹی سکین مشینیں خراب. ایمرجنسی کے لیے مختص سٹی سکین ڈپارٹمنٹ کئی ماہ سے بند ہے. دونوں ہسپتالوں کے مریض رل گئے، پرائیویٹ ٹیسٹ کرانے پر مجبور ہو گئے. شہر میں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر آلودگی پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں اور شہری مختلف امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں. لا تعداد لوگ ہسپتال کا رخ کرتے ہیں، لیکن ان کی آس امید اس وقت دم توڑ جاتی ہے جب ہسپتال جا کر انہیں معلوم ہوتا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ اور دیگر مشینیں خراب ہیں. سروسز ہسپتال کی 9 میں سے 7 الٹرا ساؤنڈ مشینیں بند پڑی ہیں. ہسپتال میں الٹرا ساؤنڈ ٹیسٹ کی سہولت نہ ہونے سے مریض در بدر ہو گئے. ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ کی مشینیں مکمل طور پر بند پڑی ہیں. مریض ہیں کہ سروسز ہسپتال کی مشینیں خراب ہوئیں تو مریضوں نے رخ کیا میو ہسپتال کا، لیکن میو ہسپتال کی متعدد سٹی سکین مشینیں بھی خراب ہونے کا انکشاف ہوا. شعبہ حادثات کے ساتھ قائم سٹی سکین ڈپارٹمنٹ کئی ماہ سے بند ہے. شعبہ ریڈیالوجی کی بھی سٹی سکین مشینیں خراب ہو گئیں. سٹی سکین مشینیں خراب ہونے سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. ایک مشین روزانہ 60 سے 70 افراد کو سہولت فراہم کرتی تھی. 42 کروڑ سے شیخ زید ہسپتال کے لیور ٹرانسپلانٹ سینٹر کی اپ گریڈیشن تو کر دی گئی، کام اور نتائج صفر نکلے. جگر کی دوسری پیوندکاری بھی ناکام رہی. جگر کا عطیہ لینے والی رینالا خود کی نفیس بی بی 5 ہفتے بعد چل بسی. شیخ زید ہسپتال میں قائم ارسلان لیور ٹرانسپلانٹ سینٹر کی 42 کروڑ روپے سے زائد خرچ کر کے اپ گریڈیشن کرنے کے بعد بھی جگر کی کامیاب پیوند کاری نہ ہو سکی. رینالا خود کی رہائشی 39 سالہ خاتون نفیس بی بی کو خصوصی اجازت کے بعد اس کی سوکن 28 سالہ عشرت بی بی نے جگر کا عطیہ دیا. 5 ہفتے قبل نفیس بی بی کے جگر کی پیوند کاری کی گئی، جس کے بعد اسے ہسپتال میں زیر علاج رکھا گیا، لیکن وہ جانبر نہ ہو سکی. شیخ زید ہسپتال کے لیور ٹرانسپلانٹ سینٹر میں اس سے قبل جگر کی پیوند کاری کے دوران ڈونر کی موت واقع ہونے پر سرجری بند کی گئی تھی اور سینٹر کی اپ گریڈیشن کروائی گئی، جس پر 42 کروڑ روپے سے زائد خرچ کیے گئے. لیکن ٹرانسپلانٹ کی جدید سہولتیں فراہم کرنے کے بعد ہونے والی جگر کی پیوند کاری بھی کامیاب نہیں رہی. اور اب بچوں کے لیے ایک بری خبر ہے. مناسب دیکھ بھال نہ ہونے پر پہلے سوزی مری، اب لاہور زو سفاری کے شیروں کی باری آ گئی. لاہور زو سفاری انتظامیہ کا لا علاج مفلوج شیروں کے جوڑے سے جان چھڑانے کا فیصلہ. محکمہ وائلڈ لائف کی مدد سے زہر دے کر مار دینے کی اجازت طلب کر لی گئی. لاہور زو سفاری کے 2 شیر گزشتہ 2 برس سے ڈسٹیمر بیماری کی وجہ سے مفلوج ہو چکے ہیں. ان کی دونوں پچھلی ٹانگیں اور دھڑ مفلوج ہونے کے باعث ان کو نقل و حرکت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. 28 سالہ نر اور مادہ شیر کے تمام میڈیکل ٹیسٹ اور علاج معالجہ کیا گیا، مگر ان کی جسمانی حالت میں بہتری نہ آ سکی. اس سے قبل یہ بیماری دیگر 2 شیروں کو بھی لاحق ہوئی تھی، جن کا علاج کیا گیا. لاہور زو سفاری انتظامیہ کے مطابق شیروں کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے محکمہ جنگلی حیات سے کلنگ کی اجازت طلب کر لی ہے. لاہوریوں کے لیے بڑے فیسٹیول کی تیاریاں جاری ہیں. پتنگیں
बनेगी। परफॉर्मिंग आर्ट्स के भी होंगे मुजाहरे। डीसी ने 15 जनवरी को बसंत के हक में अदालत में भरपूर मौक़िफ़ का फैसला कर लिया। डिप्टी कमिश्नर सालिहा सईद की ज़रिए सदारत होने वाले स्प्रिंग फेस्टिवल इजलास में मियां यूसुफ सलाहुद्दीन, उस्मान पीरजादा, मोहम्मद अली शाह, इरफान रंधावा, शाहिद नदीम, जीसी पंजाब यूनिवर्सिटी, लम्स यूनिवर्सिटी, अलहमरा, PHA, वॉल्ड सिटी और दीगर महकमों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। इजलास में स्प्रिंग फेस्टिवल को भरपूर अंदाज में मनाने का फैसला किया गया है। स्प्रिंग फेस्टिवल में थिएटर, बसंत और दीगर सकाफती प्रोग्राम्स के इनेकाद के बारे में बातचीत की गई, जबकि 15 जनवरी को अदालत में बसंत बनाने के हवाले से भरपूर मौक़िफ़ देने का फैसला किया गया। डिप्टी कमिश्नर सालिहा सईद का कहना है कि शहर में स्प्रिंग फेस्टिवल बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। प्रोग्राम के इनेकाद के लिए मुनासिब प्लान के लिए सब कमेटी बना दी गई है। जिला इंतजामिया तमाम इदारों से राय लेने के लिए लेटर भी लिखेगी। तमाम इदारों से राय लेने पर स्प्रिंग फेस्टिवल के प्रोग्राम्स पर काम शुरू किया जाएगा। अगर बसंत की इजाजत मिली तो इसको भरपूर अंदाज में मनाया जाएगा। पतंग के मुख्तलिफ डिजाइन बनाने के लिए मुकाबला करवाया जाएगा। परफॉर्मिंग आर्ट और स्पोर्ट्स को भी स्प्रिंग फेस्टिवल का हिस्सा बनाया जाएगा। यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स और मीडिया को भी स्प्रिंग फेस्टिवल का हिस्सा बनाया जाएगा। सफाई निस्फ ईमान है। क्लीन लाहौर का नारा गहना गया। शहर में सफाई सुथराई के निजाम को नया चैलेंज का सामना। मनावा का नकासियाब सिस्टम जवाब दे गया। गलियां और सड़कें जोहड़ बन गईं। गंदा पानी घरों में दाखिल हो गया। डुबनपुरा में इंसानी जिंदगी कचरे के ढेर पर आ गई। डिफेंस लाइन BRB नहर में कूड़े के ढेर लग गए। बल्दियाती नुमाइंदों ने जिम्मेदारी भल सफाई वालों पर डाल दी। पूरा गंदगी और ताफुन में डूबने लगा। लोगों की जिंदगियां सेहत के बदतरीन मसाइल से दो चार हैं। गंदे नाले के दोनों तरफ गंदगी के ढेर लग गए। फतेहगढ़, शाहदीन पार्क, कच्चा सलामतपुरा रोड कूड़ेदान में तब्दील हो गया। अब्दुल रहमान में भी गंदगी के ढेर जमा हो गए। मुल्तान रोड तो लेके ग्रिड रोड तक किलोमीटर या 2 किलोमीटर है। मशीन इतने तो नजर आएगी, सफाई नहीं नजर आएगी। खाने पीने की चीज ले आए तो इतनी जहरीली गैस होती है, बीमार हो जाते हैं। इधर दिल ही नहीं करता किसी को आने को। नाले ਦੀਆਂ दीवारां डिगियां ने, मेरा बच्चा खुद डिग पिया सी विच। मनावा के इलाके में सीवरेज का निजाम खराब। गंदा पानी लोगों के घरों में दाखिल होने लगा। लोगों का इलाके में रहना तो मुहाल, सांस लेना भी दूभर हो गया। इलाका मकीनों का घरों तक पहुंचना किसी जुए शीर लाने से कम नहीं। इंतजामिया ने सारे मसले पर चुप साध रखी है। इतना पानी है गंदा का गुजर नहीं सकता। बाज़ दफा तो वो गटर इतने खाली है, उस पर ऊपर ढक्कन ही नहीं है। अगर कोई बच्चा गिर जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। एक तो गुजरने का बहुत मसला है और दूसरा हमारे बच्चे ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। जो भी आता है उसके कपड़े गंदे। मच्छर बहुत ज़्यादा है, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। बच्चे गिरते हैं, घर जाते हैं, माएँ भी उनको मारती हैं। सानू तो तब्दीली लै गई है। ना कोई MP ने मानता, ना कोई MPA मानता। अं किधर नूं चले जाइए। उधर शहर की खूबसूरत तरीन BRB नहर गंदे नाले का मंजर पेश करने लगी है। डिफेंस लाइन BRB नहर में कूड़े के ढेर लग गए। कूड़े से जहरीली गैस मामूल बन चुका है, जबकि मच्छर भी जन्म ले रहे हैं। महकमे अनहार को होश आया, ना LWMC ने अपना किरदार अदा किया। ये महकमा अनहार जो है हर साल बल सफाई के नाम पे करोड़ों रुपया फंड लेता है और मैं समझता हूँ कि सफाई का फंड खाया जाता है, लगाया नहीं जाता। डुबनपुरा और BRB नहर के मकीनों के मुताबिक कई बार LWMC से राबिता किया गया, लेकिन किसी इदारे के कान पर जूं तक न रेंगी। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान की LWMC को तंबीह भी काम न आई और हुक्काम की कारकर्दगी ताहाल शहर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरों तक महदूद होकर रह गई है। तीसरे दिन भी लेस्को तरसीली निजाम का धड़न तख्ता रहा। 800 मेगावाट के शॉर्टफॉल से 460 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप हो गए। लोड मैनेजमेंट के नाम पर अक्सर इलाकों में बिजली बंद, सनतों में पैदावार, बाजारों में कारोबार, घरों में मामूलाते जिंदगी मुतासिर। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के ट्रांसमिशन सिस्टम में धुंध की वजह से तकनीकी खराबी पैदा हुई, जिसके बाद लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का बिजली की तरसील का निजाम बुरी तरह मुतासिर हुआ। नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से लेस्को को 1500 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है, जबकि डिमांड 2350 मेगावाट है। इस तरह 850 मेगावाट का शॉर्ट फॉल होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली की फराहमी बंद की जा रही है। लेस्को ने शहर में 12 जबकि मुजाफाती इलाकों में 18 घंटे की लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी कर रखा है। बिजली की रसद कम होने की वजह से लेस्को लोड मैनेजमेंट के नाम पर घंटों बिजली बंद कर रही है, जिसकी वजह से सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। वाज़ेह रहे कि शहर में मुसलसल तीसरे रोज बिजली बंदिश से शहरियों की मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। बिजली की लोड शेडिंग ने न सिर्फ घरेलू जिंदगी बल्कि मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन और लकड़ी की कटाई का काम करने वालों की चीखें निकलवा दी, बल्कि दुकानदार भी शदीद मुतासिर होने लगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
बिजली बंद, मशीनें बंद, दुकानदार और मजदूर फारिग बैठे हुए हैं। लोड शेडिंग ने आम लोगों के साथ साथ मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, लकड़ी की कटाई का काम करने वालों को भी परेशान कर दिया। इंजीनियरिंग वर्क्स करने वाले मैकेनिक कहते हैं कि 1 घंटा लाइट आती है, 1 घंटा जाती है। अगर जनरेटर पर मशीन चलाएं तो गुजारा करना और खर्चा निकालना मुश्किल हो जाता है। जनरेटर चलाते हैं, इसमें 3000 का ये तेल डालें, 2 घंटे चलता है, फिर आगे से काम ऐसे ही है। लकड़ी की कटाई का कारोबार करने वाले कहते हैं कि लोड शेडिंग की वजह से ऑर्डर पूरे नहीं हो रहे, कारोबार में नुकसान हो रहा है। अगर कोई हमारे पास ऑर्डर आ जाता है तो उसको हम टाइम पर अगर नहीं दे सकेंगे तो वो किस तरह करके उसमें हमारे लिए कोई आप सोच सकते हैं कि फेवर होगी। कारोबारी लोगों का कहना है कि हुकूमत ये मुआशी कत्ल बंद करके लोड शेडिंग का हल निकाले। कैमरामैन एडी मलिक के साथ शाहरुख नदीम, सिटी 42। उधर नेपरा ने लाहौर समेत पंजाब भर में होने वाली बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का नोटिस ले लिया। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी से लोड शेडिंग पर रिपोर्ट तलब कर ली। नेपरा ने शहर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का नोटिस लेते हुए नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी से रिपोर्ट तलब कर ली है। वाज़ेह रहे कि धुंध और बिजली की पैदावार में कमी की वजह से एनटीडीसी का ट्रांसमिशन सिस्टम 3 रोज से मुसलसल ट्रिप हो रहा है। सिस्टम ट्रिपिंग की वजह से लेस्को समेत दीगर कंपनियों में गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से सार्फिन के मामलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। शहर में होने वाली गैर एलानिया लोड शेडिंग से सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। हाय रे महंगाई। अकबरी मंडी और ओपन मार्केट्स में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। अकबरी मंडी में चीनी 4, ओपन मार्केट में चीनी 5 रुपए फी किलोग्राम महंगी हो गई। शहरियों की दुहाइयां जारी हैं, विफाकी और सूबाई हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर। अकबरी मंडी में चीनी की कीमत में 4 रुपए फी किलोग्राम इजाफा हो गया। दिल्ली इंतजामिया की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक थोक में चीनी की कीमत 53 रुपए मुतय्यन है। 4 रुपए इजाफे के बाद अकबरी मंडी में थोक में चीनी की कीमत 57 रुपए तक पहुंच गई है, जबकि ओपन मार्केट में चीनी के सरकारी नर्ख 55 रुपए मुतय्यन है और अब 5 रुपए इजाफे के बाद चीनी 60 रुपए फी किलोग्राम तक पहुंच गई है। शुगर डीलर्स एसोसिएशन के रहनुमा असगर भट्ट का कहना है कि शुगर मिलें मसनूई किल्लत पैदा करके चीनी की कीमतें बढ़ा रही हैं। सर्दी ज्यादा है, मजीद 15 दिन की छुट्टियां दें। स्कूलों की मौसम सरमा की तातीलात में मजीद तौसी का मुतालिबा। टीचर्स यूनियन की मजीद 15 छुट्टियों की डिमांड। बड़ी क्लासेस के औकाते कार तब्दील करने की भी दरख्वास्त थी। पंजाब टीचर्स यूनियन ने नर्सरी ता स्वयं 15 मजीद छुट्टियों का मुतालबा कर दिया, जबकि बड़ी क्लासेस के औकात कार सुबह 8:30 की बजाय 9:30 बजे करने की दरख्वास्त की है। पंजाब टीचर्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी राना लियाकत अली का कहना है कि सूबाई वज़ीर तालीम स्कूलों के औकात कार पर 15 फरवरी तक स्कूलों की हाजिरी 70% तक मुकर्रर की जाए। राना लियाकत अली का कहना था कि बड़ी क्लासेस को मजीद छुट्टियां देने से तलबा का तालीमी नुकसान होगा। शहर में 30 अरब रुपए मालियत के जारी तरक्याती मंसूबों की कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली गई। शहर खामोशा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, गंगाराम अस्पताल की इमरजेंसी, जौहर टाउन में वाटर सप्लाई समेत दीगर मंसूबों पर खर्च की गई रकम का हिसाब PND को पेश करने का हुक्म जारी कर दिया गया। PND बोर्ड ने शहर में तालीम, सेहत, रोड सेक्टर और अर्बन सेक्टर के मंसूबों पर खर्च होने वाले फंड्स की तफसीलात तलब कर ली हैं। इन मंसूबों में शहर खामोशा और पार्कों की तामीर समेत 11 स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की तामीर का मंसूबा शामिल है। दूसरी जानिब रावी के मकाम पर 24 अरब रुपए के सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, गंगाराम अस्पताल की इमरजेंसी की बहाली पर भी रिपोर्ट तलब की गई है। ताजपुरा जौहर टाउन में वाटर सप्लाई और फिल्ट्रेशन प्लांट का मंसूबा भी शामिल है। चाइल्ड लेबर सर्वे पर जारी 24 करोड़ रुपए के प्रोग्राम की अब तक कारकर्दगी रिपोर्ट भी महकमे लेबर से ली जा रही है। लाहौर समेत पंजाब भर के 15,000 स्कूलों में सोलर पैनल लगाने का मंसूबा ठप हो गया। फंड्स की अदम फराहमी के बायस किसी एक स्कूल में भी सोलर पैनल ना लग सका। 4 अरब रुपए की लागत से पंजाब भर के 15,000 स्कूलों में सोलर पैनल लगाने के मंसूबे पर फंड्स की अदम फराहमी के बायस काम ना हो सका। पहले मरहले में लाहौर के 100 स्कूलों में सोलर पैनल लगाए जाने थे। सोलर पैनल ना लगने से स्कूल सरबराह अपनी जेब से बिजली के बिल अदा करने पर मजबूर है। रवा माली साल में स्कूलों को नॉन सैलरी बजट की सिर्फ एक किस्त जारी की गई। स्कूलों को फंड्स की अदम फराहमी के बायस हजारों स्कूल सरबराहान लाखों रुपए कर्ज लेकर बिल जमा करा रहे हैं। पंजाब एसोसिएशन ऑफ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के सदर राना अता मोहम्मद का कहना है कि लोड शेडिंग में इजाफा हो रहा है, हुकूमत जितनी जल्दी हो सके सोलर पैनल लगवाए। दूसरी जानब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि फंड्स फराहम होते ही स्कूलों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे। तालीमी इदारों में मुनशियात के बढ़ते हुए रुझान को कम करने के लिए महकमा स्कूल एजुकेशन का एक ऐसा इक़दाम सामने आया है। नशे से बचाव और उसके नुकसानात से मुतालिक आगाही के लिए वीडियोज और किताबचा तैयार किया जाएगा।
تعلیمی اداروں میں نشے کے بڑھتے ہوئے رجحان کو کم کرنے کے لیے محکمہ اسکول ایجوکیشن کا احسن اقدام۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے طلباء کو نشے سے بچانے کے لیے ویڈیوز اور کتابچہ تیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کتابچہ تیار کرنے کے لیے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ کمیٹی کتابچہ اور ویڈیوز تیار کرنے میں مکمل مدد اور تعاون فراہم کرے گی۔ صوبائی وزیر تعلیم مراد راز کا کہنا ہے کہ اسکول کاؤنسلرز اور والدین بھی بچوں کو نشے سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ نشہ آور ادویات طلباء تک پہنچانے والے عناصر کا کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ شہر میں بے ہنگم غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ اور لاہور پارکنگ کمپنی میں بے ضابطگیوں پر ڈپٹی کمشنر صالح سعید نے نوٹس لے لیا۔ ایم ڈی لاہور پارکنگ کمپنی قلب عباس اور جی ایم آپریشن سے رپورٹ طلب کر لی۔ شہر میں جگہ جگہ پارکنگ مسائل درپیش ہیں، جبکہ لاہور پارکنگ کمپنی کی جانب سے بھی متعدد مقامات پر ایس او پیز کی خلاف ورزیوں اور بڑے پیمانے پر بے ضابطگیوں کے معاملات درپیش ہیں، جس کے پیش نظر اب تک 52 ملازمین کو کرپشن الزامات پر فارغ کیا جا چکا ہے۔ ڈپٹی کمشنر صالح سعید نے تمام معاملات کے پیش نظر ایم ڈی لاہور پارکنگ کمپنی قلب عباس اور جی ایم آپریشن سے بے ضابطگیوں پر تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے، جس میں شہر میں منظور شدہ پارکنگ ایریا کی فہرست فراہم کرنے، کریم بلاک، فیروز پور روڈ سمیت دیگر جگہوں پر تجاوزات لگوا کر پیسے بٹورے جانے اور غیر منظور شدہ جگہ پر کی جانے والی پارکنگ پر جواب طلبی کی گئی ہے۔ لڑائی معاف کرو، میٹروپولیٹن کارپوریشن اور پنجاب حکومت کی سرد جنگ تو ختم نہ ہو سکی، لیکن میٹروپولیٹن کارپوریشن کی اسٹریٹ لائٹس کرینز کباڑ میں تبدیل ہونے لگی۔ ورلڈ بینک کی گرانٹ کے باوجود کرینوں کی مرمت نہ ہو سکی۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے 9 زونز میں بھی اسٹریٹ لائٹس کرینوں کی خستہ حالی حکام کا منہ چڑھانے لگی۔ خستہ حال کرینوں کی مرمت و بحالی کے لیے ورلڈ بینک نے خطیر فنڈز فراہم کیے، لیکن میٹروپولیٹن کارپوریشن اور پنجاب حکومت کی سرد جنگ کے باعث ورلڈ بینک کی گرانٹ استعمال نہیں ہو سکی۔ 13 کرینوں میں سے 9 خراب، جبکہ باقی ماندہ دھکا سٹارٹ ہیں۔ سٹی 42 کو موصول ہونے والی فوٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ایم سی ایل اہلکاروں کے بار بار دھکا لگانے کے جتن کرنے کے باوجود کرین ہے کہ سٹارٹ ہونے کو تیار ہی نہیں۔ بھارت کے 32 رکنی وفد کی پنجاب یونیورسٹی آمد۔ بھارتی وفد نے لاء کالج یونیورسٹی، انسٹیٹیوٹ آف ایڈمنسٹریٹو سائنسز اور مختلف شعبہ جات کے دورے کیے۔ لاہور کی ثقافت اور مہمان نوازی نے ان کے دل جیت لیے، مزید بتا رہے ہیں اکمل سمرو اپنی اس رپورٹ میں۔ جنہیں لاہور نہیں ویکھیا وہ جمیا ہی نہیں، یہ الفاظ بھارتی وفد کے ہر رکن کی زبان پر تھے۔ آل انڈیا بار ایسوسی ایشن اور پنجاب ہریانہ بار کونسل کے مشترکہ وفد نے پنجاب یونیورسٹی کے مختلف شعبہ جات اور لائبریری کا دورہ کیا۔ وائس چانسلر ڈاکٹر نیاز احمد نے بھارتی وکلاء کو یونیورسٹی کی تاریخ بارے آگاہ کیا۔ بھارتیوں نے اپنے جذبات کا اظہار آپ دیدہ ہو کر کیا اور دونوں ممالک کے درمیان امن کی خواہش کا اظہار کیا۔ مجھے یہ لگا کہ واقعی انڈیا از ویری انسیف، لیکن ایسا کچھ نہیں، یہاں بھی ماحول اچھا ہے، انڈیا میں ماحول اچھا ہے، دونوں دیشوں کے لوگ امن چین سے رہ رہے ہیں اور دونوں دیشوں کے لوگ شانتی چاہتے ہیں، دوستی چاہتے ہیں۔ بہت ہی ਵਧੀਆ کلچر ہے ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਧਰ ਆਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। جو محبت یہاں سے ہمیں ملی ہے وہ بہت ہی اچھی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو بیریئرز ہیں ان کو ختم کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، جو ہوا بہت پہلے جو ہوا ہے وہ ہم بدل نہیں سکتے، پر ہاں اب وہ چیزیں نہیں ہیں۔ بھارتیوں کا کہنا تھا کہ لاہور زندہ دلان کا شہر ہے، جو کچھ کتابوں میں پڑھا تھا لاہور کی تاریخ اور مٹھاس اس سے کہیں زیادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بارڈر کی لکیر سے عوامی رابطہ منقطع نہیں ہونا چاہیے۔ Thanks to Lahori people, especially Punjabi people and the country of this Pakistan, salute to them. They are very nice, very good. جیسے ہم نے سوچا تھا اس سے 1000 گنا لاکھوں گنا اتنا شاندار ہاسپٹیلٹی ملی ہے یہاں پہ۔ اپنی پرانی جو وراثت تھی اس سے روبرو ہونے کا ہمیں موقع ملا ہے، اور جو ہماری مہنوازی ہوئی ہے یہاں پر اس کے لیے بھی میں آپ لوگوں کو، یہاں کے پترکار ساتھیوں کو، سیکیورٹی فورسز کو دھنیہ واد دینا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے ہمارا بہت اچھے سے سواگت کیا ہے۔ بارڈر کے اس پار بھارتی پنجاب کے ہریانہ امرتسر سے آئے اس وفد میں سکھ، ہندو اور مسلمان شامل تھے، جنہوں نے امن اور بھائی چارے کا پیغام دیا۔ کیمرامین انجم شہزاد کے ہمراہ اکمل سومرو، سٹی 42۔ ظاہر کر کے انتظامیہ کو ہدایات کون دیتا ہے؟ حکومت پنجاب نے ایسے تمام افراد کی تصدیق کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ حکومت پنجاب نے وزیر اعلیٰ کے رشتہ دار بن کر افسران کو فون کرنے والے تمام افراد کی ایوان وزیر اعلیٰ سے تصدیق کرانے کی ہدایت کر دی۔ تمام محکموں، ڈی سیز اور پولیس افسران کو مراسلہ ارسال کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کا رشتہ دار ظاہر کرنے والے کی باقاعدہ طور پر ایوان وزیر اعلیٰ سے کاؤنٹر چیک کرنے کی ہدایت۔ حکومت پنجاب نے خاص طور پر ڈی جی خان ضلع کی انتظامیہ کو اس حوالے سے آگاہ کر دیا ہے۔ حکومت پنجاب کی رپورٹ ملی تھی کہ کچھ لوگ وزیر اعلیٰ کے رشتہ دار بن کر انتظامیہ کو غیر ضروری ہدایات دے رہے ہیں، جس کا وزیر اعلیٰ نے نوٹس لیا ہے۔
आयशा मुमताज एक बार फिर होंगी इलेक्शन। डीसी लाहौर की दरख्वास्त पर हुकूमत पंजाब का आयशा मुमताज को अहम जिम्मेदारी देने का फैसला सामने आया। आयशा मुमताज राय के मुताबिक आयशा मुमताज को SWM या लारी अड्डा जैसी एडमिनिस्ट्रेटर आसामी पर तैनात किया जाएगा। फैसले की मंजूरी सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत ऐवान वज़ीर आला माल रोड पर मुनक़िदा इजलास में दी गई। डीसी लाहौर सालिहा सैयद की दरख्वास्त पर सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान ने आयशा मुमताज को अहम जिम्मेदारी देने का फैसला किया। आयशा मुमताज DO लारी अड्डा और डायरेक्टर ऑपरेशन पंजाब फूड अथॉरिटी के फराइज भी सर अंजाम दे चुकी हैं। उधर वजारत पावर डिवीजन ने नैब और FIA में ज़ेर इल्तिवा इंक्वायरीज और सजात छुपाने की वजह से लेस्को के 28 अफसरान के 4 माह कबल होने वाले प्रमोशन बोर्ड को मंसूख करते हुए एक बार फिर लेस्को से NOC के साथ कवायद मांग लिए हैं। वजारत पावर डिवीजन ने ग्रेड 19 और 20 के लिए 4 माह कबल होने वाले प्रमोशन बोर्ड को मंसूख कर दिया है। ज़राए ने बताया है कि अफसरान की जानिब से असासाजात छुपाने और केसेस इल्तवा का शिकार होने पर बोर्ड मंसूख हुआ। अफसरान के खिलाफ नैब और FIA में केसेस ज़ेर समाअत हैं, जिसकी वजह से पेप्को ने लेस्को से तमाम अफसरान के कवायद एक बार फिर मांग लिए हैं। पेप्को ने ग्रेड 19 और 20 में तरक्की देने के लिए प्रमोशन बोर्ड किया था, जिसके सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने अफसरान के असासाजात की तफसीलात, अदालतों में ज़ेर समाअत केसेस की तफसीलात मांगी थी। अकाउंटेंट जनरल पंजाब शुजाउद्दीन ज़का का कहना है कि कंपनी स्कैंडल में ऑडिट का काम मुकम्मल हो गया है। ऑडिट एंड अकाउंट्स पंजाब क्रिकेट टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब के मौका पर शुजाउद्दीन ज़का ने कहा कि एहतसाब के अमल की मुकम्मल हमायत करते हैं। कौमी इदारों की भरपूर मुआवनत की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट की सतह पर सबसे पहले अपने इदारे में एहतसाब किया है। महकमे में मौजूद काली भेड़ों को निकाल रहे हैं। शुजाउद्दीन ज़का का मजीद कहना था कि कंपनीज के मसले में उन्होंने बहुत ज़्यादा मालूमात फराहम की हैं। शहर समेत सूबा भर के सरकारी स्कूलों में सहूलियात का फुकदान। महकमा स्कूल एजुकेशन ने हुकूमत से 7 अरब रुपए मांग लिए। रवां साल सरकारी स्कूलों में सहूलियात की फराहमी के लिए बजट कम मुख्तस किया गया, जबकि हुकूमत के मुतालबात और टास्क के मुताबिक स्कूल एजुकेशन को मजीद 7 अरब रुपए दरकार हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन के हुकाम का कहना है कि रकम सरकारी स्कूलों में इजाफी क्लास रूम्स की तामीर पर खर्च होगी और स्कूलों में साफ पानी के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएंगे। हुकाम का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद महकमा खजाना 7 अरब रुपए के फंड्स हंगामी तौर पर जारी करेगा। सर्विसेज अस्पताल के पैरामेडिक्स एक बार फिर सड़कों पर आ गए। मुस्तकिली का मुतालबा लिए सर्विसेज अस्पताल के एडमिन ब्लॉक से मुजाहिरीन रैली की सूरत में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पहुंचे। सर्विसेज अस्पताल पैरामेडिक्स फिर सड़कों पर निकल आए। मुस्तकिली का मुतालबा लिए मुजाहिरीन एडमिन ब्लॉक में नारेबाजी करते रहे। बाद रैली की सूरत में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पहुंचे। मुजाहिरीन का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक 4 साल मुकम्मल करने वाले मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाना था। अब तक 500 से ज्यादा मुलाजमीन को मुस्तकिल नहीं किया जा सका। मुजाहिरीन ने कहा कि अब तक मुस्तकिली न होना मुआशी कत्ल से कम नहीं। उधर जनरल अस्पताल के बाहर मोटरसाइकिल चोर पकड़ा गया। शहरियों ने मोटरसाइकिल चोर की दुर्गत बना डाली। जनरल अस्पताल के बाहर से मोटरसाइकिल चोर पकड़ा गया। शहरियों ने मोटरसाइकिल चोर को रंगे हाथों पकड़कर उसकी दुर्गत बना डाली। चोर से मोटरसाइकिल की मुताबिक चाबियां भी बरामद हुई, जबकि पुलिस के मुताबिक चोर अस्पताल में मरीजों के साथ आने वाले लवाहिकीन की मोटरसाइकिलें और सामान चोरी करता था, जबकि मुल्जिम नशे का आदी है। मुल्जिम जनरल अस्पताल के सामने खड़ी मोटरसाइकिल का ताला खोल रहा था कि शहरी ने उसे रंगे हाथों पकड़कर दुर्गत बनाने के बाद कोट लखपत पुलिस के हवाले कर दिया। सियासी सूरत हाल की बात करें, हुकूमत और अपोजिशन को एक पेज पर लाने की कोशिशें जारी हैं। पंजाब असम्बली की कार्रवाई अफवाह व तफहीम के साथ चलाने के लिए अपोजिशन मुतहरिक हो गई। पंजाब हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात से कबल बैकडोर राब्ते शुरू हो गए हैं। पंजाब असम्बली की कार्रवाई अफवाह तफहीम के साथ चलाने पर इत्तफाक के लिए दोनों जानिब से कोशिशों का आगाज किया गया है। अपोजिशन ने हुकूमत को पेशकश की है कि 2 पब्लिक अकाउंट्स कमेटियों में से एक हुकूमत और एक अपोजिशन के पास हो। हुकूमत की जानिब से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 की सरबराही अपोजिशन लीडर को दी जाए, जबकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 की सरबराही हुकूमत को दी जाए। ज़राए का कहना है कि अपोजिशन ने हुकूमत से कायमा कमेटियों की तकसीम का फार्मूला वाज़ेह करने को कहा है कि 36 कायमा कमेटियों में से किस किस की सरबराही अपोजिशन को दी जाएगी। पंजाब असम्बली की कुल 36 कायमा कमेटियों में से 19 हुकूमत को, जबकि 17 अपोजिशन को मिलेंगी। एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, अल्फला थिएटर में नए स्टेज ड्रामे झांझरांदा जोड़ा का आगाज हो गया। ड्रामे में नामवर कॉमेडियन अदाकार नासिर चन्योटी, इफ्तिकार ठाकुर, तारिक चेडी, इमानत चंद, जफरी खान, साजिन अब्बास, सखावत नाज, सरदार कमाल समेत दीगर फनकार शामिल हैं। ड्रामे का अहवाल जानते हैं जैन मदनी हुसैनी की इस रिपोर्ट से।
अल्फला थिएटर में नए ड्रामे झांझरा दा जोड़ का आगाज हुआ, जिसमें नामवर कॉमेडियंस नासिर चिन्योटी, इफ्तिखार ठाकुर, अमाना चंद, तारिक टेडी, सरदार कमाल, जफरी खान, साजन अब्बास, सखावत नाज, अदाकारा हनी शहजादी, सारा खान, आफरीन खान, एंजल समेत दीगर अदाकाराएं शामिल हैं। ड्रामे की कहानी ऐसे इलाके की है जो तजावजात की जद में आता है और इस इलाके का चौधरी अमानत चंद होता है। ड्रामे में अदाकारों की म्यूजिकल परफॉर्मेंस भी शामिल हैं। ड्रामे की कहानी राहेल शाह ने लिखी है, जबकि ड्रामे के हिदायतकार सरदार कमाल हैं, जिनका कहना है कि मौजूआती ड्रामे शायकीन के लिए सबक बनते हैं। कैमरामैन शाहिद महमूद के हमरा ज़ैन मदनी हुसैनी, सिटी 42।